afternoon students, myself Sharon. How are you all? I hope everyone is fine and safe at home. From today onwards we will start with our second semester and we will do lesson number 7, that is Sparsh. So open your book at page number 39. Are you all ready? So let's begin. First of all, I will give you the introduction of the chapter. Name of the chapter is Sparsh. Sparsh is a sweet and mischievous son of Mrs. Satakshi who wants to teach him a lesson on holiday. Sparsh जो है वो एक लड़का है जो कि क्या है, बहुत ही नॉटी है, ठीक है। और उसकी जो मम्मी है जिसका क्या नाम है मिसेस सताक्षी, वो जो है उसे एक सबक सिखाना चाहती है जिस दिन उसकी छुट्टी होती है। But soon Mrs. Satakshi learns that her son is a genius. पर मिसेस सताक्षी जो है उसे एंड में पता लगता है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ही चालाक और होशियार है, इसने मुझे भी बेवकूफ़ बना दिया। So now we will do the reading of the chapter. Let's begin. Sparsh is a good boy, but sometimes he works mischievously. His mother is cleaning the drawing room while he is busy in doing something very tasty. सो यहाँ पर क्या है, स्पर्श जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा लड़का है, पर कभी कभी जो है वो बहुत शैतानियाँ करता है। मिस्चीवियसली मतलब कि बहुत शैतानियाँ करना। और उसकी मम्मी जो है वो ड्राइंग रूम जो है उसको साफ़ कर रही है और वो जो है कुछ गलत काम करने के लिए बिजी है अपने में। Suddenly his mother, Mrs. Satakshi, heard a sound behind her. She turned round quickly. There was Sparsh near the kitchen door. सो क्या होता है कि एकदम से उसकी मम्मी मिसेस सताक्षी जो है वो क्या है, एक आवाज़ सुनती है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कौन दिखाई देता है, स्पर्श दिखाई देता है, जो कि कहाँ पर है, किचन डोर के पास में है। देयर वॉज आइसक्रीम ऑल राउंड हिज माउथ, और उसके चारों तरफ उसका जो मुंह था उसके वहाँ पर क्या लगी हुई थी, आइसक्रीम लगी हुई थी। What have you been doing? Mrs. Satakshi asked angrily. A-N-G-R-I-L-Y, angrily. When Sparsh did not answer, she went on. You have been stealing, S-T-A-L-I-N-G, stealing the ice cream again. Don't tell me that you haven't. Haven't I told you 100 times to keep away from that refrigerator? R-E-F-R-I, refrigerator, G-E-R-A-T-O-R, refrigerator. सो क्या है, मिसेस सताक्षी उनको पूछती है कि क्या कर रहे थे तुम गुस्से में, पर वो स्पर्श कुछ भी नहीं बोलता है। तो एंड में क्या होता है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला हुआ है कि यहाँ से आइसक्रीम चुरानी नहीं है। Where's my stick? Mrs. Satakshi took her stick and raised it high. She was about to strike, S-T, stir, R-I-K-E, right, strike, so it will be strike. Sparsh hard. Look behind you, mom, shouted Sparsh. सो क्या है, जैसे उसकी मम्मी कहती है मेरी छड़ी कहाँ पे है, मैं अभी इसको मारती हूँ, और तभी जो है वो स्पर्श भागना चाहता है तो वो कहता है मम्मी पीछे मुड़कर देखो। Mrs. Satakshi looked behind her. This was Sparsh's chance. तो जैसे उसकी मम्मी पीछे मुड़कर देखती है तो स्पर्श के पास चांस होता है कि वो भाग सके। He rushed out of the house. He climbed over the fence. F-E-N-C-E, fence. Soon he was far away. Mrs. Satakshi was angry, but she had to laugh. He's a bad boy, she said to herself, but I love him and I must look after him. सो क्या है, मिसेस सताक्षी जो है वो गुस्से में थी पर वो फिर भी हंसती है और कहती है कि ये क्या है, मेरा प्यारा सा बच्चा है और मैं इसे जो है प्यार करती हूँ, पर मुझे इसको देखना पड़ेगा।
I don't like to hit him but I have to. इसका मतलब है मुझे उसे मारना नहीं पसंद है पर मुझे मारना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिगड़ जाएगा. If I don't punish him, P-U-N-I-S-H, punish him, he will. This is the short form of he will grow up lazy and wicked. और अगर मैं इसे नहीं मारूंगी तो ये बहुत ही आलसी और बुरा लड़का बनेगा. Yes, I must be strict. और मुझे strict रहना पड़ेगा. मिसेस सतक्षी sighed. ये मिसेस सतक्षी ने सोचा. I will have to punish him for stealing the ice cream. But how? तो मिसेस सतक्षी बोलती कि मुझे तो इसे पनिश करना पड़ेगा आइसक्रीम चुराने के लिए, पर मैं कैसे करूं? I know tomorrow is Sunday. T-O-2-M-O-R-O-W, row. Tomorrow is Sunday. And there's no school on Sundays. तो वो बोलती है कि हाँ कल मुझे पता है कि छुट्टी है क्योंकि कल संडे और संडे को तो कोई स्कूल नहीं लगता. The boys have a holiday, और लड़कों की छुट्टी है. But I will make स्पर्श work. पर मैं जो है स्पर्श से काम करवाऊंगी. Now turn page number 40. That will punish him. और ये जो है उसके लिए सजा होगी. The next day was Sunday. The school was shut. All the boys in the village were free. It was a beautiful day. So क्या था कि स्कूल जो थे वो बंद थे और सभी बच्चे जो गांव में थे वो क्या थे, फ्री थे, और वो बहुत ही सुहाना दिन था. The sun was shining and the birds were singing. So सन जो था वो शाइन कर रहा था और बर्ड जो थे वो चहचहा रहे थे. The trees and flowers looked so fresh and lovely. Sparsh of course wanted to go for swimming. All the other boys were going. So क्या था कि स्पर्श को भी स्विमिंग करने के लिए जाना था क्योंकि सभी लड़कों ने प्लान किया था कि आज बहुत अच्छा दिन है और हम लोग स्विमिंग करने के लिए जाएंगे. Sparsh came sadly out of the house. In one hand he held a long brush. In the other he carried a bucket which was full of whitewash. His aunt was making him whitewash the fence. पर स्पर्श जो है वो घर से बहुत ही उदास चेहरे से निकलता है. उसके एक हाथ में क्या होता है, ब्रश होता है, और दूसरे हाथ में एक बकेट होती है जिसमें क्या होता है, वाइट पेंट होता है. और उसकी आंटी ने उसे काम दिया है कि तुमने जो है वो फेंस को वाइट वॉश करना है. फेंस का मतलब होता है जो हमारे घरों के चारों ओर जो हमने बाड़ बनाई होती है उसे हम फेंस बोलते हैं. स्पर्श लुक्ड सैडली एट द फेंस. How high it is, how long it is, he thought. Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. Sparsh put his brush into the whitewash. He drew it slowly across the fence. It made a very small white mark. Sparsh tried again. Another very small white mark. Sparsh sat down and sighed heavily. So क्या होता है कि स्पर्श जो है वो बड़े दुखी से फेंस को देखता है कि ये कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है. और सचमुच में जो फेंस थी उसकी हाइट जो थी वो कितनी थी, 9 फीट की थी, और वो कितनी लंबी थी, 30 फुट की वो लंबी थी. तो क्या हुआ, उसे लगने लगा कि हाँ अब तो मुझे काम करना पड़ेगा. तो वो जैसे अपना ब्रश उठा के वाइट वॉश करता है, तो जब वो करता तो वो देखता है अभी तक इतना छोटा सा मार्क हुआ, मुझे तो अभी पूरी फेंस को वाइट वॉश करना है. तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, उदास होकर बैठ जाता है. He took out all the things that he had in his pockets. He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys. तो क्या है, वो अपनी पॉकेट से जो है सामान निकालता है. तो सामान में क्या क्या होता है, कुछ कंचे थे, कुछ 2-3 टूटे फूटे टॉयज थे और 1-2 धागे थे. No one will whitewash the fence for these, he thought. तो वो कहता है इन चीज़ों के लिए तो कोई भी मेरे लिए वाइट वॉश नहीं करेगा. No, I must think of a better plan, he thought and thought. Soon he had an idea. तो वो कहता है कि मुझे अगर किसी से वाइट वॉश करवाना है तो मुझे एक अच्छा प्लान सोचना पड़ेगा.
तो वो सोचने लगता है और उसके पास एक आइडिया आ जाता है. He picked up his brush again and began working hard. Abhay was coming down the street. Sparsh pretended not to see him. He worked hard than ever. Abhay was eating a banana. He looked very happy. So क्या है, वो जैसे देखता है कि अभय आ रहा है तो वो क्या करता है, और मेहनत से और ज़ोरों शोरों से काम अपना शुरू कर देता है करना, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैंने अभय को देखा ही नहीं. तो अभय क्या था, वो उस साइड आ रहा था अपनी साइकिल में और क्या खा रहा था, बनाना खा रहा था, और वो बहुत ही खुश था. He was pretending that he was a big ship and he was rolling like one. He was giving orders in a loud voice and the ship was obeying them. He came up to Sparsh. He rubbed his eyes. Why? Sparsh cried in a great surprise. You are working. So, जो स्पर्श था वो क्या है, ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं जो हूँ एक बहुत बड़ी शिप हूँ और मैं पानी में यहाँ वहाँ गोते खा रही हूँ, और वो जो है ऑर्डर दिए जा रहा है और उसकी शिप जो है वो ऑर्डर माने जा रही है. तो जो अभय होता है वो अपनी आंखें मल के कहता है कि तुम तो काम कर रहे हो, तुम शिप को कहाँ चला रहे हो. Sparsh said nothing. He went on with his whitewashing. He looked very interested in his work. So क्या है, स्पर्श जो है वो अपने काम में बिजी था, वो वाइट वॉश करे ही जा रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मैं बहुत ही बिजी हूँ. स्पर्श यू आर वर्किंग, अभय रिपीटेड. सो अभय फिर से बोलता है कि स्पर्श तुम जो हो तुम तो काम कर रहे हो. नाउ